Everything around us which occupies some space and have some mass is called matter. So we are going to start with the things. I have this duster, this is matter. I have this chalk, this is matter. Around here in atmosphere, there is in air is also a matter. Your book, you have a book, you have a pen, you have a book, notebook, is also all such things which occupy some space and have some mass is called matter. So we are going to start with these things in details. So first of all, this is the basic definition of matter. When you classify the matter, you can classify it two things: physical classification and chemical classification. You can classify the matter with physical properties and chemical properties. But we only deal with physical properties. In higher classes, we deal with chemical properties, or other next chapters we can deal with chemical properties. But in this chapter, we deal with physical properties. So first of all, what is the physical properties? Like their melting points. Hello scholars. Our today's topic, matter in our surrounding. Everything around us which occupies some space and have some mass is called matter. So we are going to start with the things. I have this duster, this is matter. I have this chalk, this is matter. Around here in atmosphere, there is in air is also a matter. Your book, you have a book, you have a pen, you have a book, notebook, is also all such things which occupy some space and have some mass is called matter. So we are going to start with these things in details. So first of all, this is the basic definition of matter. When you classify the matter, you can classify it two things: physical classification and chemical classification. You can classify the matter with physical properties and chemical properties. But we only deal with physical properties. In higher classes, we deal with chemical properties, or other next chapters we can deal with chemical properties. But in this chapter, we deal with physical properties. So first of all, what is जो मैटर है हमारा, वो स्मॉल पार्टिकल्स से बना है. अब ये मैंने आपको बता दिया फिजिकली कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना है. इसको हम कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा कि ये कैसे आप इसको बोल सकते हो कि मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स से बना है. मतलब कैसे पता लगाया कि जो मैटर है वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना है. तो सबसे पहले इसमें एक्टिविटी फर्स्ट यहाँ पर ले लेंगे. एक्टिविटी फर्स्ट, पहली एक्टिविटी है हमारी है इस चैप्टर की. तो इस चैप्टर की पहली एक्टिविटी के साथ हम जाएंगे और देखेंगे कि इस एक्टिविटी के थ्रू आपको कैसे आप बोल सकते हो कि जो आपके जो भी आपके जो
मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सम crystals of potassium permanganate। पोटेशियम परमैंगनेट हम नेक्स्ट एक्टिविटी में लेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर हम जो लेने वाले हैं क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है, एंड शुगर यू कैन टेक। ठीक, इसको क्या कीजिए आप एक बीकर में आप इसको क्या करिए, ग्लास रॉड के थ्रू, ग्लास रॉड आपने लेनी है और उस ग्लास रॉड के थ्रू आपने क्या कर देना है, इसमें मिक्स कर देना। यू कैन मिक्स सॉल्ट इन दिस बीकर। क्या होगा, सॉल्ट डिसअपियर हो जाएगा, इट डिसअपियर। सॉल्ट पार्टिकल्स जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो इस एक्टिविटी से ये पता लगा कि ये जो वाटर है, यहां से एक आइडिया निकल के आता है। दैट आइडिया इज कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होती है जहां पर ये जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। अगर सॉल्ट पार्टिकल्स कहां गए, व्हाट वी ऑब्जर्व कि सॉल्ट पार्टिकल कहां गए, तो वो क्या हो गए, वाटर में डिसअपियर हो गए। और यहां से एक आइडिया लगता है कि जो आपका सॉल्ट है कि वो जो मैटर है, जो सॉल्ट है, सॉल्ट उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत टाइनी पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल्स क्या हो जा रहे हैं, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में मिक्स हो जा रहे हैं। तो यहां से एक और आइडिया हमें मिलता है कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है ना, वो हम आगे जाएंगे। फिलहाल हमें इस एक्टिविटी से हम ये बता सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। बहुत इजी एक्टिविटी थी। हाउ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ दिस मैटर, सबसे दूसरी बात कि हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्वेश्चन है कि ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2। तो सेकेंड एक्टिविटी क्या है कि आपने एक बीकर लेना है और पोटेशियम परमैंगनेट लेना है। पोटेशियम परमैंगनेट आपने लेना है। पोटेशियम परमैंगनेट एक सॉल्ट है और वो सॉल्ट आपको लेबोरेटरी में इजीली अवेलेबल हो जाएगा जब कभी भी आप स्कूल जाओगे। अभी तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल्स ऑफ है। जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो, इसका जो कलर है वो पिंक कलर हो जाता है। जैसे सॉल्ट मिक्स हो जाता है वैसे ये मिक्स हो जाता है। सॉल्ट का जो कलर है वो कलरलेस है, इसलिए उसका सॉल्ट वो जो वाइट मतलब इतना वो ट्रांसपेरेंट टाइप का रहता है। लेकिन जब पोटेशियम परमैंगनेट आप ऐड करोगे तो पिंक कलर होता है, पूरे इसका जो है वो क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि आपके पास एक क्रिस्टल्स हैं जिसको यहाँ पे डालने पर इसमें क्या आ जाता है, पिंक कलर आ जाता है। अब क्या करना है, आपने 100 ml आपने वाटर लेना है इस बीकर में और 100 ml में आपने ये पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल जो है आपने इसमें डाल दिया। ठीक हो गया। जैसे आप इसमें क्रिस्टल डालोगे और इसको स्टीयर करोगे तो ये पूरा का पूरा जो क्रिस्टल्स हैं, अभी अभी हमने एक्टिविटी की थी जिसमें हमें पता लगा था कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्ट के पार्टिकल्स में डिसअपियर हो गए। तो जैसे ये क्रिस्टल आप इसमें डालते हो तो क्या होता है कि ये जो आपका जो बीकर है इसमें जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा सारा का सारा। अब इसमें से आपने 10 ml जो है वो क्या करना है, 10 ml जो है वो इसमें से लेना है एक अनदर बीकर। उस बीकर में आपने क्या करना है, इसको डाल देना है। ठीक हो गया। अब 90 ml ये लेना है तो टोटल 100 ml फिर हो गया। फिर आपने एक और बीकर लेना है, उसमें क्लियर वाटर लेना है 90 ml।
और उसमें फिर इसमें से आप 10 ml ले लो, इसको इसमें मिक्स कर दो, तो यहां पर भी आपको कलर दिखाई देगा। इट मीन्स दैट कि 1 क्रिस्टल ऑफ वाटर, सॉरी 1 क्रिस्टल इन 100 ml ऑफ वाटर, जैसे आपने मिक्स किया फिर उसका 10 ml लिया, फिर 90 ml फ्रेश वाटर में आपने उसको मिक्स कर दिया, अगेन उसमें से आपने 10 ml लिया और फिर अगेन 90 ml फ्रेश वाटर में आपने मिक्स कर दिया। तो इसको आपने प्रोसेस रिपीट करते रहना, तो आपको पता लगेगा कि मतलब स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल क्रिस्टल ऑफ दिस पोटेशियम परमैग्नेट में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। मीन्स अभी भी कलर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपका 1 क्रिस्टल है, 1 क्रिस्टल ये अबाउट 1000 ml ऑफ वाटर को क्या कर सकता है, कलर कर सकता है। इट मीन्स दैट कि ये जो 1 क्रिस्टल है इसमें मिलियन ऑफ पार्टिकल्स हैं, और वो मिलियन ऑफ पार्टिकल्स क्या करते हैं, 1000 लीटर वाटर को क्या कर सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं, उसको गुलाबी कलर, उसमें गुलाबी कलर शेड आ सकता है। इट मीन्स दैट कि ये हमारी इमेजिनेशन से भी परे है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं। तो इस एक्टिविटी से आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ये जो है आपका पोटेशियम परमैग्नेट, उसमें मिलियन ऑफ पार्टिकल्स हैं जो 1000 लीटर को भी क्या कर सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक्टिविटी हमें बताती है कि हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्लियर है? ठीक। Characteristics of particles of matter. ये आ जाएगा आपका सेकंड। इससे पहले हम देख रहे थे कि जो पार्टिकल्स हैं, मतलब जो मैटर है वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है। अब उन पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करेंगे, और उसमें हमने 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए। तो फर्स्ट इज कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। उसमें एक एक्टिविटी हमने परफॉर्म की थी, दैट एक्टिविटी इज कि सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर देते हैं और उसके बाद फिर उसको चेक करते हैं कि वो सॉल्ट पार्टिकल कहाँ गए, यानी कि वो डिसअपीयर हो गए। इट मीन्स कि आइडिया लगता है कि जो सॉल्ट के पार्टिकल है वो स्मॉल टाइनी क्रिस्टल से मिलकर बना था, क्रिस्टल स्मॉल टाइनी पार्टिकल से वो क्रिस्टल बना था, और वो सारे पार्टिकल जो है वाटर के पार्टिकल्स में जाकर, उनके स्पेस के बीच में जाकर वो डिसअपीयर हो गए, वो मिक्स हो गए। फिर उसके बाद फिर हमने एक एक्टिविटी और ली थी जिसमें हमने 100 ml ऑफ वाटर लिया था और एक क्रिस्टल हमने पोटेशियम परमैग्नेट का लिया था, उसको मिक्स किया था। फिर मिक्स करने के बाद उसमें से हमने 10 ml लिया था, फिर हम 90 ml फिर फ्रेश वाटर में हमने उसको ऐड किया था, फिर अगेन उसमें से 10 ml लिया था और फिर 90 ml फ्रेश वाटर में हमने उसको मिक्स किया था। इससे हमें पता लगा 1000 ml में आप 1 क्रिस्टल को 1000 ml वाटर को आप क्या कर सकते हो, कलर, मतलब उसमें थोड़ा सा कलर उसका आ जाता है, उसकी शेड थोड़ी सी आ जाती है। तो यहां से हमें पता लगा था कि जो पार्टिकल्स, मतलब जो मैटर है वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है। सेकंड पॉइंट इज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब उन पार्टिकल्स जो हमने अभी नेक्स्ट जो आपकी प्रीवियस 2 एक्टिविटीज में हमने जो परफॉर्म किया था उसमें हम जो पार्टिकल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को अब स्टडी करेंगे कि उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। Particle of matter have space between them। ठीक, बहुत इजी है। स्टार्टिंग की जो 2 एक्टिविटी हमने परफॉर्म की हैं वहीं से आपको पता लग जाएगा। हमने एक्टिविटी क्या परफॉर्म की थी, हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने क्या लिया था, वाटर लिया था, और इसमें हमने सॉल्ट जो है वो उसको मिक्स किया। तो जो सॉल्ट है वो डिसअपीयर हो गया। अब वो कहाँ गया, वो क्या हुआ कि जो ये जो पार्टिकल हैं, जो व्हाइट डॉट हैं, ये हैं आपके वाटर के पार्टिकल्स, और जो ब्लैक डॉट है वो किसके पार्टिकल्स हैं, वो हैं सॉल्ट के पार्टिकल्स। तो भाई डिसअपीयर कब होगा, भाई जैसे अगर मुझे इसके पार्टिकल इसमें मिक्स करने हैं तो यहां पर जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, थोड़ी सी स्पेस होगी। तो ये जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं, मतलब वो क्या होंगे, इन पार्टिकल्स के बीच में जाके फिट हो जाएंगे तो वो डिसअपीयर हो जाएगा। यहां से इन 2 एक्टिविटीज से परफॉर्म हो जाता है, ये आपको हमें समझ में आ जाता है, एक आइडिया लग जाता है दैट इज कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम।
जो पार्टिकल है मैटर का, तो पार्टिकल है। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, दैट इज पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। आइए देखते हैं एक्टिविटीज से और जानते हैं कि कैसे पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। तो दे आर 3 एक्टिविटीज, उन 3 एक्टिविटीज को हम परफॉर्म करेंगे। पहली एक्टिविटी है दैट इज कि आपने द एक्टिविटी थर्ड एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक। इसमें क्या लेना है आपने, इंसेंस स्टिक लेनी है, इसको हम अगरबत्ती बोल देते हैं। घर पे सबके घर में जो है वो अवेलेबल होगी इंसेंस स्टिक। अगर नहीं है तो आप मार्केट से खरीद परचेज कर सकते हो, 10 रुपए का पैकेट आता है, ठीक। तो इंसेंस स्टिक आपने लेनी है और उस इंसेंस स्टिक को अभी लाइट नहीं करना आपने। अभी आपने जो स्टिक लेनी है वो नॉर्मली कहाँ पे प्लेस कर देनी है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्लासरूम हो सकता है, ये आपका जिस रूम में आप रहते हो, या आपका बेडरूम हो सकता है, एक कोने में आप स्टिक को आप रख दीजिए। आप देखो कि आप इस स्टिक तक इसको स्मेल कैसे करोगे। आप इसको स्मेल करने के लिए आपको इसके पास जाना पड़ेगा, तब इसकी स्मेल आएगी। और अब आप क्या करना है, आपने इसको लाइट कर देना है। इसको लाइट कर दिया आपने। अब आप कोने में कहीं पे भी आप जो है वो खड़े हो जाओ, आपको इसकी स्मेल आ जाएगी। पहली एक्टिविटी है। तो आपने यहां से क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया कि जो आपकी इंसेंस स्टिक थी वो जब लाइट नहीं थी, जब वो लाइट नहीं कर रही थी, तब हमने उसके पास जाके उसको स्मेल किया। लेकिन जब वो लाइट कर रही थी तो फिर हमने देखा कि वो पूरे रूम में उसकी जो है स्मेल आ गई है। दैट इज एक्टिविटी थर्ड। हम डिस्कस करेंगे इसके रिजल्ट्स, कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक। तो पहली एक्टिविटी आपको समझ में आ गई कि आपने क्या करना है, कॉर्नर पे, रूम के कॉर्नर या क्लास का कॉर्नर, क्लास पे यानी अब रूम ही है, तो रूम में आपने कोने पे आपने क्या कर देना है, इंसेंस स्टिक को रख देना है। और आपको उस पास जाओगे, पास जाने के बाद आपको पता लगेगा कि इसमें स्मेल आ रही है। अराउंड आप दूसरे साइड खड़े होगे तो उसकी स्मेल नहीं आ रही होगी, लेकिन आप उसको लाइट कर देते हो तो आपके पूरे रूम में उसकी जो लाइट है, सॉरी, उसकी जो स्मेल है वो आपको आ जाएगी। नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4, इसमें क्या करना है, आपने 2 बीकर लेने हैं, दोनों बीकर में आपने वाटर ले लेना है। आपने क्या करना है, यहाँ पर इसमें इंक, आप ड्रॉपर से आप क्या करो, इसमें इंक या रेड या फिर ब्लू इंक जो है आप इसमें डाल सकते हो, ठीक। ड्रॉप डालने हैं आपने यहाँ से, इसमें आपने हनी के ड्रॉप्स डालने हैं, ठीक। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो हनी है वो सेटल डाउन हो गया नीचे यहाँ पर, और जो इंक है वो क्या हो गई है, जैसे आप ड्रॉप डालते हो वैसे ही वो मिक्स हो जाती है, ठीक। तो इस एक्टिविटी से क्या आपने ऑब्जर्वेशन ली है, ऑब्जर्वेशन ये ली है कि सबसे पहले तो हनी जो है वो मोर डेंस है इंक से, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत क्लोज हैं, तो वो डेंस है तो वो नीचे सेटल डाउन हो जा रहे हैं। लेकिन इंक के पार्टिकल्स जो है वो इतने डेंस नहीं है, तो वो क्या हो जा रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं। और कुछ टाइम के लिए आपने इसको रख देना है, कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। तो आप देखोगे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जो इंक है वो पूरी प्रॉपर जो है मिक्स हो चुकी है, लेकिन हनी अभी प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ है, वो यहाँ पर इतना मिक्स हो चुका होगा, इतना यहाँ तक, ठीक। बाकी आप एक्टिविटी में आप नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी नंबर 5।
इस एक्टिविटी में अगेन हमने पोटेशियम परमैंगनेट लेना है या फिर कॉपर क्रिस्टल आप ले सकते हो, कॉपर जो सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल ले सकते हो आप, है ना। लेकिन हम पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ब्लू कलर होता है इसका। ये भी सॉल्ट है, जैसे सॉल्ट है वैसे ही NaCl आपका जो टेबल सॉल्ट होता है इसी तरीके के ये सॉल्ट्स हैं। इसको हम खा नहीं सकते, उसको हम खा सकते हैं ना, ये से। तो आप क्या करना है, आपने यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट लेना है। उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, KMnO4, दैट इज Mn इज मैग्नीज एंड दिस इज पोटेशियम, ऑक्सीजन, है ना। ये सब एलिमेंट आपको पता ही है, नहीं पता है तो अभी डिस्कस करेंगे हम आगे, है ना। आगे अभी चैप्टर्स आएंगे तो हम पोटेशियम मैग्नीज देखेंगे और ऑक्सीजन का देखेंगे क्या है क्या नहीं है। जैसे आप इसमें इसको डाल देते हो, है ना। अब यहाँ पे 2 बीकर आपने लेने हैं। एक बीकर में जो वाटर होना चाहिए वो होना चाहिए हॉट वाटर, और दूसरे वाटर जो होना चाहिए वो होना चाहिए कोल्ड वाटर। हॉट वाटर, कोल्ड वाटर। जैसे आप पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डालते हो तो ये जो क्रिस्टल है वो यहाँ पर जो है वो गिर जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ये स्प्रेड हो जाएगा, पिंक कलर स्प्रेड हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी क्या होगा, कलर स्प्रेड होगा, लेकिन उतना स्प्रेड नहीं होगा जितना इस हॉट वाटर में हो जाता है। यानी कि कोल्ड वाटर में जो KMnO4 आप डालोगे तो वो उतना एकदम से मिक्स नहीं होगा। आपने अनडिस्टर्ब, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, आपने स्टीयर नहीं करना, ये इसको खुद मिक्स होने देना है बाय देयर ओन, है ना। आपने क्या करना है, इसको मिक्स होने देना है। तो आप देखोगे कि हॉट वाटर में क्या हो रहा है, वो जल्दी मिक्स हो रहा है, और कोल्ड वाटर में वो इतना अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है बाय देयर ओन, है ना। आपने इसको स्टीयर नहीं करना है। क्लियर हो गया। तो यहां से पता लगेगा कि जब वाटर जो है वो हॉट होता है तब जो उसमें जो मिक्सिंग है वो बहुत तेजी से होती है एज कंपेयर टू जब वो कोल्ड वाटर होता है, ठीक। तो ये 3 एक्टिविटी से हमें समझ में आता है कि जब एक टाइप के पार्टिकल्स अदर टाइप के पार्टिकल्स में मिक्स होते हैं, वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज मिक्स्ड विद अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, इस प्रोसेस को, ये मिक्सिंग है ना, ये जो पार्टिकल मिक्स हुए हैं, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन जो है ये देखने को मिलेगा आपको कब, जब आप एक पार्टिकल अदर पार्टिकल्स में इंटरमिक्स हो जाते हैं, है ना। तो हमने एक्टिविटी 1 में मैं आपको ले जाता हूं। एक्टिविटी 1 में क्या हुआ था कि आपने इंसेंस स्टिक जो है वो एक कॉर्नर पे रख दी थी और आपने उसको लाइट कर दिया था। तो क्या हुआ था कि उसके जो पार्टिकल्स का उसको जो धुआं है ना, उसका जो स्मोक है वो क्या हो जाता है, एयर के पार्टिकल्स में मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद आप तक रीच कर लेता है। इट मींस पहली एक्टिविटी से हमें समझ में आता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो मूव कर रहे थे तभी आप तक पहुंच पा रहे थे। सेकेंड एक्टिविटी अगर आप अभी मैंने जो अभी एक्सप्लेन की थी आपको याद होगी, तो मतलब इसमें सेकेंड, वैसे तो वो मेरे ख्याल से 4th एक्टिविटी थी। तो 4th एक्टिविटी में क्या किया था हमने, 4th एक्टिविटी में हमने एक हनी लिया था, एक इंक लिया था। जैसे ही आप इंक ड्रॉप उसमें डाल देते हो तो आपने देखा मिक्स हो रहे हैं वो, यानी कि लिक्विड पार्ट, चाहे वो लिक्विड हो, लिक्विड में भी जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो रहे थे, मिक्स हो रहे थे बाय देयर ओन। 1 घंटे बाद वो सारे के सारे कंप्लीटली मिक्स हो गए, यानी डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही है, ठीक। उसके बाद 3rd एक्टिविटी में हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। हॉट वाटर में हमने एक्टिविटी में नोटिस किया था कि जो KMnO4 के पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेजी से मिक्स हो रहे हैं, और कोल्ड वाटर में वो तेजी से मिक्स नहीं हो रहा है। इट मींस टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है डिफ्यूजन पे। डिफ्यूजन मैंने आपको समझा दिया, एक वर्ड में आप समझ सकते हो कि वन टाइप ऑफ पार्टिकल मिक्स विद अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल। तो यहां पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेस। होता क्या है कि जैसे ही जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी वजह से ये मूव करते हैं। तो एक आइडिया यहां पे अब लग जाता है। देखो, डिफ्यूजन मैंने आपको समझा दिया, काइनेटिक एनर्जी में आपका आइडिया दे रहा हूं काइनेटिक एनर्जी का, कि जैसे ही पार्टिकल टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। यानी कि आप तक, जैसे एक एक्टिविटी जो हमने पहली एक्टिविटी की थी, पहली मतलब इसकी 3rd एक्टिविटी, उसमें क्या था, एक कॉर्नर पे आपने स्टिक रख दी थी, उसको लाइट कर दिया था, आप तक रीच कर रहे थे उसके पार्टिकल्स। क्यों कर रहे थे, क्योंकि दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। उन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी है, और मूव कौन करता है, काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज मूव कर रही होती है, इट हैज सम एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इट मींस पार्टिकल हैज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो पार्टिकल्स आप तक रीच कर रहे थे। इज दैट क्लियर? And the process of intermixing of one type of particle in another type of particle, that is called diffusion. तो डिफ्यूजन प्रोसेस कब बढ़ेगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो बहुत तेजी से मूव करेंगे और बहुत तेजी से मिक्स हो जाएंगे। तो ये है यहाँ पर
particle of matter continuously moving. अब इसे एक को ठंडे वाले और एक को गर्म वाले पानी में डालना है। तो यह हमने डाल दिया दोनों में। अब देखोगे राइट साइड वाले में देखो जो कलर है वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर लेफ्ट वाले से हम कंपेयर करें तो राइट साइड वाले में बहुत तेज़ी से कलर फैल रहा है। तो इसको डालने के बाद यहाँ आपको कहा जा रहा है कि इसे स्टिर नहीं करना, यानी किसी ग्लास रॉड वगैरह या चम्मच की मदद से इसे चलाना नहीं है। जो क्रिस्टल है उन्हें सेटल डाउन हो जाने दो बॉटम में, नीचे जाके वो अपने आप बैठ जाने दो। वॉट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। तो जो दाने आपने डाले थे उस ग्लास के अंदर या बीकर के अंदर, तो उसके ठीक ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आप देखोगे वहाँ से कलर एक धुएं की तरह से बनते हुए ऊपर की तरफ उठ रहा होगा। ठीक है, जो गर्म वाला पानी उसमें ज़्यादा हमें दिख रहा है कलर ऊपर की तरफ जाते हुए उस क्रिस्टल से, और ठंडे वाले में हमें कम दिख रहा है, लेकिन कलर वहाँ से चारों तरफ फैल रहा है। क्या होगा जब टाइम पास होगा, यानी और टाइम बीतेगा? तो यहाँ ऊपर से भी आप देख सकते हो राइट साइड वाले में कलर ज़्यादा फैला है जिसमें हमने गर्म पानी लिया था, और जो कोल्ड वाटर हमने लेफ्ट साइड में लिया था वहाँ कम फैला है, लेकिन फैल दोनों तरफ रहा है। इस वीडियो से और थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। देखो राइट साइड वाले में कलर थोड़ा ज़्यादा घुला हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, कलर यहाँ से ऊपर की तरफ उड़ते हुए भी जा रहा है। ठीक है, धुएं की तरह से ये ऊपर की तरफ उड़ रहा है, और लेफ्ट साइड वाले में काफ़ी कम है। तो अब हमसे ये पूछ रहा है व्हाट डज दिस सजेस्ट